Good afternoon once again. By the time other students join in this session of afternoon session, it is 12 to 12:40, and the 7th E class is the one of the most inspiring class in terms of their discipline, behavior, and their attitude towards teachers. So, with that motivation, I always appear in this class. I get lot of energy, and at the same time I am able to give lot of energy to my students in return. It is just like a return gift. So every day we celebrate and every day we return something to each other. So this is the uh, priority class in terms of because of their own attitude, and this attitude comes from the parental sides, the parents, the way they are nurturing to these kids. A lot of credit goes to the parents. Okay, so this is class of 7th E, and so far it is time 12:08, and 12:10 I will start. It's maybe 2 minutes late, but this is the online classes, and there are certain limitations of the online classes, and sometimes network issues are also there. So I don't want to start the class in hurry, and so that the students should not miss the class. Sorry. So students are required to motivate each other, and they should call their friends whoever left out in the class. So students, 12:10 we will start the lesson, and you are required to call your friends and ask them to join the class in time. Okay, am I right? Are you able to see something on the screen, dear friends? Yes, sir. What is it? Yes, sir. What is it? Yes, sir. What The is written on devotional that? paths. Devotional paths to the divine. Okay, means everything is correct. Okay, everything is right means. Okay, ठीक है? Okay, so 12:09. So this is the lesson, devotional path to divine. In this lesson already we have seen several issues. Intro part is over long back, and we enjoyed the divinity and meaning of divine, and devotions meaning we come to know. In this lesson we have also seen the first stanza, that is the idea of supreme God. What is the idea of supreme God, and how the emergence of God took place in our life in the 8th century, how the people started to perceive the word God, भगवान को किस रूप में लोग देखते थे. And I also shared them there are different modes of bhakti. Bhakti means surrendering oneself in front of the Almighty, the deities हमारे हैं, उनके सामने हम अपने आप को सरेंडर करते हैं. और अमाउंट ऑफ सरेंडर जैसा होता है, जैसे आप लोग जिस एटीट्यूड के साथ क्लास में बैठते हो और जिस एटीट्यूड के साथ टीचर का सम्मान करते हो, तो टीचर ऑल्सो आर बाउंड टू रिटर्न इन द सेम वे. इसको जरा एक्सपीरियंस करना. भगवान और अपने आप को भक्त को समझने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने रिलेशंस को अपने माता पिता और अपने टीचर्स के साथ जोड़ने का प्रयास करो. अगर आपको फील होता है या नहीं कि आप जिस तरीके से अपने टीचर को सम्मान देते हो, तो टीचर भी उस रिटर्न में आप फील करते हो कि नहीं? कभी कोई फील किया कि टीचर हर बच्चे को उसी अमाउंट में अफेक्शन रिटर्न नहीं देता है, कुछ ना कुछ अंतर होता है ना? कभी फील किया आपने बीइंग ए स्टूडेंट? बताओ, इट इज माय क्वेश्चन टू यू. आपको लगता है कि टीचर हमको ज्यादा मानते हैं, या कभी ऐसा कुछ आपको फील होता है कि नहीं होता है? यस सर, कभी कभी होता है. कभी कभी होता है ना. ये क्यों होता है? ये फीलिंग इसीलिए होती है बेटा, क्योंकि आपकी श्रद्धा अगर जितनी ही बड़ी होगी, आपको रिटर्न भी उतना ही मिलता है. गेट योर पॉइंट? तो दैट इज अ भक्ति. आप जिस तरह का एटीट्यूड दिखाते हो अपने माता पिता के प्रति या अपने गुरु के प्रति, तो गुरु भी रिटर्न में उतना ही गिफ्ट लौटाता है उसी अमाउंट में. जैसे न्यूटन ने कहा कि आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ोगे
एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, कि हर एक प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी अनुपात में होती है, उसी रेशियो में होती है। तो जैसे आप दीवार पर अगर बॉल मारोगे, धीरे से मारोगे तो धीरे से रिटर्न आएगा, थोड़ा सा रिटर्न आएगा, और जोर से मारोगे तो जोर से आएगा। हाँ, तो उसी तरह मम्मी को ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे तो मम्मी भी ज्यादा रिस्पेक्ट आपको देंगी, मतलब हाँ, रोज अच्छा अच्छा आइटम बनेगा। हाँ हाँ, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। और पापा को जितना ही रिस्पेक्ट दोगे तो पापा भी उतना ही आपको क्या प्यार करेंगे। मान लो आप 40% मार्क्स लेकर आओगे तो 40% वाला आपको गिफ्ट मिलेगा, और 95% अगर मार्क्स लेकर आओगे तो 95% वाला गिफ्ट मिलेगा, मतलब बढ़िया से गिफ्ट मिलेगा, कोई कंजूसी नहीं होगी। इसी तरह भगवान भी हैं, अगर भगवान की भक्ति अगर आप दिल से करते हो, ठीक है, तो आपको उसी तरह से रिटर्न मिलेगा, समझ रहे हो। और वो रिटर्न कैसे मिलता है, वो रिटर्न पापा मम्मी की तरह नहीं मिलता है, वो रिटर्न एक अलग तरीके से मिलता है, जो लॉन्ग टर्म में होता है, मन की शांति के रूप में होता है, अच्छे विचार के रूप में होता है, अच्छे आचरण के रूप में। आप जब उसको रिफ्लेक्ट करोगे तो आपका जीवन वैसे ही सफल हो जाएगा। चलो, विद दिस पॉजिटिव नोट वी आर एंटरिंग इन दिस लेसन, ओके। अब थोड़ा सा हम अपने बच्चों से रीडिंग करवा दें, क्योंकि घर में तो रीडिंग कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं। तो हमारे सामने कौन सा बच्चा है जो रीडिंग करेगा? तो हम किसी का नाम टी से है तो उसका नाम आया टी से तनिषा, ओके। क्योंकि मैंने कल असेंडिंग ऑर्डर में किया था, आज हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रीडिंग कराएंगे। तो तनिषा कैन स्टार्ट रीडिंग, ओके। तनिषा इज नॉट देयर। और अच्छा, लास्ट रोल नंबर से स्टार्ट करो। रोल नंबर टी से नहीं करते हैं, लास्ट रोल नंबर से करते हैं। पहली बार हमने A12 से स्टार्ट किया था, अब लास्ट रोल नंबर से। कौन है लास्ट रोल नंबर? हु इज लास्ट रोल नंबर? तरुण। तरुण, यू कैन रीड। तरुण इज देयर इन द क्लास? इफ नॉट देन नेक्स्ट रोल नंबर आ जाओ। 49 तनिषा। तनिषा स्टार्ट बेटा। I don't want to waste the time, otherwise I have to give the certain students so that the class can proceed. Okay, 48 47 जल्दी करो, नहीं तो मेरे बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। चलो, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो, किससे स्टार्ट करो? श्रुति सिंह आप पढ़िए, क्योंकि आप छठ पूजा का गायन आपने भेजा था, बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम लगा, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी। इसके बाद मैं ऐश्वर्या, हाथ उठाया था ऐश्वर्या ने, और क्योंकि मुझे क्लास को आगे बढ़ाना है बेटा। चलिए, तो स्टार्ट रीडिंग। बुक को मैं डिस्प्ले करता हूँ आपके सामने। बुक आ गई है और बुक अब आगे बढ़ेगी ऊपर, ठीक है। ये तो हाँ ठीक, ओके, आई गॉट द पॉइंट। सो ये साइड से होगा, ठीक है, ओके। थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर योर मोटिवेशन, आई लर्न समथिंग, ओके। चलिए, सॉरी, अ न्यू काइंड ऑफ, है ना, यहाँ से हम लोग को पढ़ना था। तो यहाँ पर हमने देखा था, कल के लेसन में हमने कल का रीडिंग में हमने देखा था कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, ये दोनों हमारे इस लेसन में आ चुके थे, हमारे जीवन में आ चुके थे। और इनके आने का मुख्य कारण था कि कहीं ना कहीं उस समय में थोड़ा कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है ना, और ऊंच नीच की भावनाएं आ गई थी। और इन भावनाओं को, अब जिसे कहते हैं ना, गीता में लिखा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्टिता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। तो जैसे कोई चीजें बहुत ज्यादा किसी भी चीज का प्रकोप हो जाता है, एंड थिंग्स रीच टू देयर हाईएस्ट लेवल, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो उस चीज को, उससे बचाने के लिए कुछ ना कुछ शक्तियां का आविर्भाव होता है। एंड हियर इज अ बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा एंड जैनिस्ट महावीर स्वामी, इन दोनों का आविर्भाव होता है, और समाज में वो उन सब फोर्सेस का पतन होता है या कंट्रोल होता है। नेगेटिविटी थोड़ी छटती है। अब हम आते हैं एक नए लेवल पर। हमारा नया टॉपिक है अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन द साउथ इंडिया, नैनार्स एंड अलवार्स, ठीक है। इसको जरा पढ़ेंगे आप, चलिए। Yes, sir. The 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movements led by the Nayanars, saints devoted to Shiva, and Alvars. ठीक है, ये devoted to Shiva, ये कौन है? सेंस नैनार, है ना। अब इसको बेटा समझने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे।
हम अब इसको जैम बोर्ड पर दिखा सकते हैं। हमारे पास एक जैम बोर्ड खुला हुआ है, तो देखो ये है ना, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ से दिस आई टुक द पेन, और अच्छा ठीक है, और हमने एक पेन लिया, ठीक है, और इस पेन को हमने बना लिया, ये हम देखो बना रहे हैं, ये है ना, ये हमने एक बनाया, ये ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगुलर बनाया, ये हमारा मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट, इसको मानेंगे मैग्नेट। यहाँ हमने लिख दिया n, ये मेरा फॉर्मूला बनाया हुआ है, इसको आप अपने बुक पे कर लें। ये हमने n लिख दिया और इसको हमने s कर दिया। तो हमारे मैग्नेट का में नॉर्थ और साउथ पोल होता है ना बेटा, होता है ना, यू नो दैट देयर इज अ 2 पोल्स ऑन द मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ। तो n यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है ना, इसको हमने मान लिया क्या, n फॉर नैनार, लिख लेना नैनार, ये क्या है, NAYANAR, नैनार है। हम लिखने में दिक्कत हो रही है, टाइम भी लग रहा है, नैनार, इसको याद रख लेना नैनार। और ये है शिवा, है ना, एस साउथ पोल है ना, इसको हमने बोल दिया शिवा। याद रखने के लिए, आपको साइंस में पढ़ते हो ना, तो इसलिए मैंने यहाँ NS उसका फॉर्मूला लिया साइंस वाला, और हियर आई मेड द फॉर्मूला, नैनार मीन्स दे आर फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना, नैनार आर द फॉलोअर्स ऑफ शिवा। तो हमारे पास दो संत हैं, नैनार और अलवार हैं, तो अगर एक याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा ना बेटा, कि बाकी जो बचे वो विष्णु के फॉलोअर हो गए। तो अलवार किसके फॉलोअर हो गए, वो ये A फॉर अलवार एंड V फॉर विष्णु, ठीक है, अलवार किसके फॉलोअर हुए, वो विष्णु के फॉलोअर हो गए, ठीक है। अगर आप एक याद रख लो, दिस वन यू इफ यू आर एबल टू रिमेंबर, देन ऑटोमेटिकली यू कैन रिमेंबर दिस वन, करेक्ट ना, बोलो भाई। Yes, sir. चलो Yes, sir. आगे पढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. And Alvars, saints devoted to Vishnu, who came from all castes, including those considered untouchable, like the Pulayar and Panaras. हाँ, अब यहाँ पर देखो, ये देखो अनटचेबिलिटी हमारे ग्रंथों में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में टाइम टू टाइम जो है ना, एक वर्ड यूज होता है प्लेगरिज्म। इसको भी लोग आरोप लगाते हैं कि प्लेगरिज्म मतलब कि किसी की टेक्स्ट को किसी भी तरह रिप्रेजेंट करके उसमें कुछ चीज़ों को डाल देना। तो कहीं नहीं, और दूसरा कारण ये भी है कि समाज में जिसके पास पावर होता है, समटाइम्स दे यूज द पावर इन देयर ओन इंटरेस्ट। जैसे आज बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर के पास पावर है, आज़ादी के बाद से कुछ लोगों ने पावर को एक्युमुलेट कर लिया और उस पावर का वो दुरुपयोग करते हैं। उसी तरह समाज में भी ऐसा होता है, जैसे मान लो किसी बच्चे को क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है और वो मॉनिटर बनता है, टीचर्स के बार बार संपर्क में वही आता है, प्रिंसिपल उससे बुलाते हैं, तो कभी न कभी वो अपने आप को, उसका कॉलर हाई हो जाता है, वो सोचता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ग्रेट हूँ, और कभी कभी क्लास के बच्चों को वो मतलब अपने तरीके से नियमों को मैनिपुलेट करता है अपने फायदे के लिए। ऐसा कभी कभी होता है, गॉट योर पॉइंट। तो सेम थिंग would have happened in earlier times also, and there are certain communities they are considered as the untouchables. However, हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी, that 4 वर्णाज आर देयर, एंड ब्राह्मणा, क्षत्रियाज, वैश्य एंड शूद्राज, इसको बनाने का कारण क्या था कि समाज में हर तरह के काम होते हैं और उन काम को करने के लिए हर तरह के लोगों की जरूरत है। तो कोई एक पढ़ने का काम कर रहा है, तो कोई इस देश की सुरक्षा का काम कर रहा है, कोई व्यापार का काम कर रहा है, तो कोई देश में स्वच्छता अभियान जैसे कामों को कर रहा है। इसी तरह आज अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद 4 तरह की जॉब्स आई, ग्रुप ए सर्विसेज, ग्रुप बी सर्विसेज, ग्रुप सी सर्विसेज और ग्रुप डी सर्विसेज, ठीक है। ये हर तरह के लोगों को की जरूरत है ना समाज में, ऑफिसर्स भी चाहिए, ठीक है, और मिडिल क्लास के वर्कर्स भी चाहिए, और सफाई के लिए वर्कर भी चाहिए, हर तरह के लोगों की जरूरत है। तो समाज में भी हर तरह के लोगों की जरूरत है, और इसीलिए ये वर्ण विभाजन किया गया। बट टाइम टू टाइम व्हाट हैपेंस, जो क्लास 1 है वो अपने आप को क्लास बड़ा समझने लगे, ग्रुप डी वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं होती है। एंड एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेन, अदरवाइज थिंग्स वर वेरी क्लियर, क्रिस्टल एंड वेरी मच गुड। सो प्लेयर एंड पनारस, ठीक है, ये जो थे ये अनटचेबल समझे जाने लगे, एंड दिस थिंग्स आर नॉट करेक्ट, ठीक है। आर यू गेटिंग पॉइंट? यस सर। हाँ, तो ये यस सर। तो ये चीजें हमारे समाज में जब आएंगी तो समाज में विभाजन होता है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स क्रिएट्स अपर कास्ट, लोअर कास्ट, these things
divide the society, and it is not growth for that society also. Did you mind? So they were sharply critical and Buddhist and पढ़ो आगे बेटा. Yes, sir. They were sharply critical of the Buddhists and Jainas and preached ardent love of Shiva or Vishnu as the path to salvation. They drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature. ठीक है. The earliest example. हाँ, संगम लिटरेचर, इसको अंडरलाइन कर लेंगे. ये संगम लिटरेचर था ना, दिस इज अ वेरी गुड. जैसे आपने सुना होगा प्रयाग में, हाँ, यूपी में प्रयाग जगह है जिसका नाम पहले प्रयाग था, बाद में इलाहाबाद हुआ, फिर प्रयाग हो गया. तो प्रयाग में हमेशा देखो कुंभ होता है ना, प्रयागराज. हाँ, प्रयागराज, यस. तो प्रयागराज जो था ना, प्रयागराज में हमेशा कुंभ के का एक ओकेजन होता है. उस ओकेजन के समय में देश विदेश के विद्वान आते थे और एक्सचेंज करते थे. तो नॉर्थ इंडिया में ये ज्ञान के एक्सचेंज का एक सेंटर हुआ करता था प्रयाग. ठीक है. उसी तरह साउथ इंडिया में ये संगम लिटरेचर नाम ही पड़ गया क्योंकि वहां पर संगम होता था. संगम मतलब कॉन्फ्लुएंस. कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है वेयर टू और मोर देन टू रिवर्स मीट्स. जैसे प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं, तो उसको वो संगम बन गया. दूसरी तरह संगम लिटरेचर मतलब वो साउथ इंडिया में ही होता था कि एक ऑर्गेनाइज किया जाता था, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी जो राजाओं के द्वारा की जाती थी, और उसमें देश विदेश के और अनेक भारतीय भाषाओं के भी विद्वान आते थे और वहां पर ज्ञान का एक्सचेंज होता था. तो उस समय जो रिकॉर्डिंग होती थी, मतलब नोट जो किया जाता, वो उसमें जो अच्छी अच्छी बातें निकल कर आती थी. जैसे मैं क्लास में बोल रहा हूँ, जैसे कुछ बातें आपको अच्छी लगी, आपने उसको नोट कर लिया. ठीक है. तो ऐसे मान लो कोई और सब्जेक्ट टीचर होता, इसी टॉपिक पर बोलता, वो कुछ बातें बोलता, उसको भी आपने नोट कर लिया. कोई और होता, उसने भी कुछ बातें बताई, उसको भी आपने नोट कर लिया, और सारी बातों को कंपाइल कर लिया. तो आपने क्या किया, एक लिटरेचर का रूप ले लिया, आपने एक बुक फॉर्म में उसको पब्लिश कर दिया. उसी तरह दैट वर्क वॉज डन इन द संगम लिटरेचर. ठीक है. और तमिल जो लिटरेचर था, एंड इट इज वेरी रिच तमिल लिटरेचर. ओके. आज अगर फिल्मों की भी बात करो, फिल्मों में बच्चों का थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है कार्टून वगैरह में, तो फिल्मों की भी चर्चा कर लिया जाए. तो फिल्मों की बात देखो तो बॉलीवुड से अच्छी फिल्में बनती हैं टॉलीवुड में, तमिल फिल्में. ठीक है. उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, उनका पिक्चराइजेशन भी अच्छा है. तो ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द संगम लिटरेचर, द क्वालिटी ऑफ संगम लिटरेचर, कि कितना अच्छा संगम लिटरेचर था. बस इस बात को हम समझाने के लिए ये हमने फिल्मों का एक थोड़ा सहारा लिया. ठीक है. तो उस जमाने में लोगों ने शिवा और विष्णु को फॉलो किया, और इसके बाद संगम लिटरेचर अगर साउथ में देखें तो संगम लिटरेचर में बहुत सारी इस तरह की बातें जो कि समाज से, देश से, डिवोशन से संबंधित बातों और भक्ति से संबंधित बातों को बहुत प्रेशर मिला. चलिए आगे पढ़िए. Yes, sir. The earliest example of Tamil literature composed during the early centuries of the Common Era and blended them with the values of bhakti. The Nayanars and Alvars went from place to place composing exquisite poems in praise of the deities ancient in the villages they visited and set them to music. Yes. तो जब हम जो संत थे हमारे नैनार और अलवार, आप जैसे आज के समय में हम डिस्कशन करते हैं, आज के समय में जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये क्या है, दिस इज द वे टू स्प्रेड द नॉलेज. डिफाइंड. हम रैली करते हैं या पॉलिटिकल लीडर्स जैसे भाषण देते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को अपने पार्टीज के प्रपोजल्स के बारे में, अपने पार्टीज के मैनिफेस्टो, उनका जो फ्यूचर प्रोग्राम है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. उसी तरह सिमिलर वे दीज भक्ति किंग्स अबाउट भक्ति, दे टुक द stories, different stories related with the bhakti, different information related with the bhakti, different types of advantages they might have experienced or created out of bhakti. So उन सब सारे एक्सपीरियंस को उन लोगों ने क्या किया, नैनार और अलवार जो संत थे हमारे साउथ इंडिया में, वो लोगों तक ले गए कि भक्ति से क्या फायदा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ भक्ति, और उसको लोगों तक पहुंचाया. और यही कारण है कि भारत में जो ज्ञान था, वो भारत का जो ज्ञान, जो सोचने का तरीका था, वो दूसरे देशों के ज्ञान और सोचने के तरीके से अलग था. और भारत के जन जन में भक्ति का जो हम कहते हैं ना कि हमारे डीएनए में भक्ति आ गया है ना, और हमारा जो सिस्टम भी कुछ अलग था.
कि हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं। हम लोग तो नेचर वर्शिपर थे, इसलिए हम हमारे यहाँ टॉलरेंस लेवल भी बहुत हाई रहा। सहिष्णुता जिसको कहते हैं ना, ये सहिष्णुता हमारे यहाँ के लोगों में बहुत ऊंची थी। ये कहीं ना कहीं ये भक्ति का ही प्रभाव था कि लोग टॉलरेंट बहुत हुए, सहिष्णु बहुत हुए। चलो हम आगे पढ़ते हैं। अब ये कहानी पढ़ेगी ऐश्वर्या, जल्दी पढ़ो बेटा। Yes, sir. Between the 10th and the 12th century, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of shrines visited by the same god. ऐश्वर्या प्लीज बेटा, ये जो बॉक्स में पढ़ा है ना नैनार एंड अलवार के बारे में, उसको भी पढ़ लो बेटा। Nainas and Alvars. There were 63 Nainas who belonged to different caste backgrounds, such as porters, untouchable, worker, peasant, hunter, soldier, Brahmins, and chiefs. The best known. So what it indicates? अब यहाँ लिखा कि 63 नैनार्स थे, ठीक है, और ये इसमें देखो सारे जो हमारे जो कास्ट सिस्टम जो है ना, ठीक है, तो वो सारे दो पॉटर, ये एक्चुअली हम इसको कास्ट के रूप में भले ही हम बोलते हैं और सॉरी, तो हम इसको भले ही हम आज कास्ट के रूप में देखते हैं बेटा, लेकिन हमारे परसीव करने का हमारा एक तरीका अलग है। मैं इसको देखता हूं वर्क डिवीजन के रूप में मैं देखता हूं, ठीक है। देखो पॉटर्स अगर नहीं हो तो बहुत तरह के जो बर्तन बनते थे, चाहे वो पानी रखने के लिए काम आए, चाहे दूसरे चीजों में काम आए, ठीक है, तो वो सारे बर्तन को बनाने वाले लोग थे। ये तो ये मैन्युफैक्चरर थे एक प्रकार के। पॉटर क्या थे? बर्तन को बनाने वाले इंजीनियर थे, ठीक है। जिसको आप एल्युमिनियम का बर्तन बनाते हो, किसी ने बनाया, हाँ, हॉकिंस का कुकर बनता है, खाना ही तो बनता है उसमें, और क्या बनता है, हाँ, तो पहले ये इंजीनियर थे, पॉटर्स वेयर। और जान तो इनको मिट्टी की पहचान थी, पहले मिट्टी का एक बर्तन हुआ करता था। आज फिर से वो रिवाइवल हो रहा है। एक गुजरात की कहानी है, थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूं। उसके पापा पॉटर थे, ठीक है, और पॉटर थे, और वो धीरे धीरे आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में पॉटरी, मिट्टी के बर्तन को कौन पूछता है, तो धीरे धीरे वो लोग गरीब होते गए, और बेटे को वो नहीं चाहते थे कि वो पॉटरी के प्रोफेशन में आए, ठीक है। तो उन्होंने बेटे को बीटेक कराया, लेकिन बेटे की इच्छा नहीं थी। बेटा मना कर रहा था कि मुझे नहीं करना है ये, मुझे अपना ट्रेडिशनल जो पैरेंटल जो बिजनेस है उसी को रिवाइव करना है। तो पापा ने कहा, तो बेटे ने कर लिया बीटेक। बीटेक करने के बाद उसने फिर वो उसको करने में मन नहीं लगा, बीटेक कर तो लिया पापा के कहने के पर। इसके बाद उसने बीटेक जो है छोड़ दिया और पापा से बोला कि मुझे एक चांस दीजिए, और 30,000 पापा से लिया। और इसके बाद उसने पॉटरी का अपना वो पुराना जो बिजनेस था ना उसको लॉन्च किया, और धीरे धीरे उसने उसको बहुत सारी चीज़ें उसमें इनोवेशंस डाली, और वो मिट्टी का फ्रिज बनाने लगा, मिट्टी के वाटर बॉटल बनाने लगे, मिट्टी का बेलन चौका तो बनाया ही, बहुत सारी चीज़ें मिट्टी का उसने बनाया, ठीक है, और उसको डिस्प्ले किया। और मिट्टी के ये जो जब कोई चीज़ रखी जाती है तो वो चीज़ जो है बहुत ही ड्यूरेबल होती है और ख़राब नहीं होती है। मिट्टी का प्रेशर कुकर बनाया उसने। अब हम लोग जो दाल खाते हैं, आप कभी नेट पर टाइप करना राजू दीक्षित, ठीक है, तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं क्लास में उतना सारा जानकारी नहीं दे सकता हूँ। कहने का मतलब बस इतना ही है कि यहाँ पर जो पॉटर की बात आई, तो मैंने उस पॉटर का एग्जाम्पल दिया आपको, और एक सही घटना मैंने बताया, गुजरात की जो घटना बताई। तो उस मतलब कहने का मतलब यहाँ ये था मेरा कि ये जो पॉटर जो बनाने वाले लोग थे बहुत एक्सपर्ट लोग हुआ करते थे, किंतु समय के साथ ये जब हमारे देश पर विदेशियों का शासन हुआ तो उन्होंने भारत के एक्सपर्टीज को बहुत सारे तरीकों से ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनके कंट्रीज में बनाई हुई चीज़ें यहाँ नहीं बिकती, तो उनकी फैक्ट्री नहीं चलती, तो इस वजह से भारत की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने खुद जानबूझ कर ख़राब कर दिया, समझ लो। तो ये हमारे अब यहाँ पर मैं यहाँ पर जो टॉपिक किया है कि 63 नैनार्स, जिसमें पॉटर भी थे, अनटचेबल जिनको कहते थे वो वर्कर वो भी थे, पीजेंट्स किसान भी थे, हंटर्स भी थे, सोल्जर्स भी थे, और ब्राह्मीन्स भी थे, ठीक है, एंड चीफ्स जो पावरफुल होते हैं, जो रूलर्स होते हैं,
वो थे। कहने का मतलब क्या है, नैनार्स दे रिप्रेजेंट द ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी। मतलब कितना ये, अगर हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करें तो नैनार्स ने का जो कल्ट था वो इंक्लूसिव सोसाइटी में विश्वास रखता था। ठीक है, समझ में आ रही बात कि सबको साथ में लेकर चलने की भावना उनमें बहुत प्रबल थी। दैट इज द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक आउट हियर। ओके, नेक्स्ट पढ़िए बेटा। The best known among them were Upper Samandar, Sundar, and Manikavasagar. There are two sets of compilation of their songs, Tevaram and Tiruvakkam. हाँ, ये याद रखना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ये जो है ना तेवारम, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, एंड तिरुवक्करम, तो ये जो है ना तिरुवक्कम, तो ये जो है ना, ये दोनों को आप लोग याद रखेंगे। टू सेट्स ऑफ कंपाइलेशन, मतलब नैनार के जो विचारधारा है ना, जैसे कहते एक कवि ने लिखा तो एक कविता लिखी, मान लो राष्ट्र कवि दिनकर की बात करें तो दिनकर ने कविता लिखी, तो दिनकर जी ने लिखा तो उनके विचार ने अपने ने बहुत सारी कविताएं लिखी। जैसे मान लो एक हमने कहा दिया रश्मि रथी है ना, उसमें उन्होंने कुछ अपने विचार रखे। ठीक है, तो कुछ विचार और दूसरी किताबों में उन्होंने लिखे। उसी तरह नैनार जो संत थे उन्होंने कंपाइल किया अपने विचार को, अपने थॉट्स को, अपनी कविताओं को, अपने भक्ति के सोच को, तो उसको उन्होंने नाम क्या दिया, तेवारम एंड तिरुवक्कम। तो इसमें इन्होंने अपने सारे विचारों को इसमें कंपाइल किया। चलिए, there were 12 Alvars who came from equally divergent backgrounds. The best known being Periyalvar, his daughter Andal, Tondar Dippodi, Tondar Dippodi Alvar and Nammalvar. Their songs were compiled in the Divya Prabandham. दिव्य प्रबंधम, दिव्य मतलब तो ना दिव्य, दिव्य मैंने बहुत डिवाइन है ना, दिव्य है ना। दिव्य पेय सुना होगा, बाबा रामदेव बनाते हैं, एक चाय बनाते हैं वो, तो दिव्य पेय उन्होंने नाम दिया है ना, जिसको पीने के बाद आप अलग लेवल पर चले जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, उसमें जो हर्बल है ना, हर्बल टी एक प्रकार से कह लो उसको। तो दिव्य प्रबंधम, इसका कंटेंट क्या था कि आप अगर इसको ठीक तरीके से पढ़ लें तो आप जो है आपका मैनेजमेंट, आपकी सोच आप बिल्कुल दिव्य हो जाएगी, बहुत डिवाइन हो जाएगी। तो यहाँ भी जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंट कम्युनिटीज दे वर द पार्ट और द फॉलोअर्स ऑफ द नैनार्स, सिमिलरली हियर ऑल्सो दैट पीपल फ्रॉम डाइवर्जेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आने लगे और ज्वाइन किया अलवार को। ठीक है, और उनकी विचारधारा को, और उनका ये जो, इसको याद रखना, और उनकी विचारधारा किसमें है, तो दिव्य प्रबंधम में कलेक्टेड है। ठीक है, आई एम राइट? ठीक है, yes, sir. ठीक है, इसको पढ़ लो बेटा, इसका फिर दूसरे को जान देते हैं। Between the 10th and 12th century, the Chola and the Pandya kings built elaborate temple around many of the shrines visited by the saint poets, strengthening the links between the bhakti tradition and temple worship. This was also the time when their poems were compiled. Besides hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nainars were also composed. Today we use these texts as sources for writing histories of the Bhakti tradition. देखो हेजियोग्राफी को मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, राइटिंग ऑफ सन्स लाइफ है ना, इसको हम हेजियोग्राफी एक नाम देते हैं, ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेजियोग्राफी और द रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ द अलवार्स एंड नैनार्स वर ऑल्सो कंपोज। तो इस काल में किस किस तरह की राइटिंग हुई, दैट इज फोकस्ड हियर, कि हम संतों को जो काम करेगा उसी का नाम होगा। तो यहाँ पर भक्ति मूवमेंट बहुत चले और जिन लोगों ने चलाया उनके बारे में लोगों ने लिखा। तो टुडे वी यूज दिस टेक्स्ट एंड सोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। ओके, उसके बारे में हम जो कुछ भी आज लिख पा रहे हैं, तो उस जमाने में जो हमारे कवि थे उन लोगों ने जो लिखा, जो हमारे संत थे, महात्मा थे, उन लोगों ने जो लिखा, उसी के बारे में हम लोग आगे कर पाते हैं। ठीक है, बोल पाते हैं। ठीक है, ईशांत मौर्य सॉरी
बोलिए बेटा। ईशांत मौर्य हैं क्लास में? रुद्र सैनी? Yes, sir. Be devoted to devote and the Lord. This is composition of meaning. इसको नहीं पढ़ोगे? into द डेवोटी एंड द लॉर्ड को नहीं पढ़ोगे? दिस इज द कंपोजिशन ऑफ मणिकव सागर। हाँ, मणिकव सागर, ठीक है, इसको पढ़ो। into my vile body of flesh. vile body of flesh, you came as thought it were a temple of God, and stood me holy and saved me, Okay. or Lord of these, or gem most pure, sorrow and birth and death, and illusion you took from me and set me free. O blesses, O light, I have taken you with me, and never can I be parted from you. कंटेंट इसमें है, दिस इज द, इसमें कंटेंट क्या है कि ओ माय लॉर्ड, यू आर द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव प्रोटेक्टेड अस, you have saved me, and you have helped a lot whenever it is required. Bless me with all good things on me. Get your point? समझ रहे हो? Now start reading. Philosophy and Bhakti. Philosophy का मतलब होता है दर्शन, दर्शिति दर्शनम, जो देखने में हमको मदद करे, जो देखने लायक हो या जो दिखाने में मदद करे, वही फिलॉसफी है, वही दर्शन है, ठीक है। और किसी भी चीज का एलोबरेट अंडरस्टैंडिंग, इट लीड्स टू द लेवल ऑफ फिलॉसफिकल लेवल। हम चीजों को, जो सामान्य लोगों को जो दिखती हैं, उसके बियॉन्ड हम देख रहे हैं। वी आर एबल टू सी द थिंग्स वी आर एबल टू सी द थिंग्स विच कॉमन मैन आर नॉट एबल टू सी। दैट एबिलिटी कम्स विद द फिलॉसफी, ठीक है। तो चलिए पढ़ेंगे। ईशांत मौर्य पढ़ो बेटा। ईशांत नहीं है। अर्पिता सैनी? यस सर। पढ़ो बेटा, जल्दी पढ़ो। शंकरा, वन ऑफ philosopher of India, was born in Kerala in 8th century. He was an advocate of Advaita, or the doctrine of the oneness, doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the unlimited ultimate reality. He thought that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. हाँ देखो, यहाँ पर मैं यहाँ बताना He considered the word. हाँ, 1 मिनट। पहली बात तो, हम जिस रूप में आज हम ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मण है ना, उस तरीके से शंकर के दिमाग में ये ब्राह्मण वर्ड नहीं था। ये बात समझना। जैसे आज कहीं ना कहीं कास्टिज्म का रूप हो गया है, और इस तरह की भावनाएं, और कभी कहीं ना कहीं लिटरेचर और निगेटिव एक्सप्लेनेशन करने वाले लोग भी ज़्यादा हैं। जैसे आत्मोत्सर्ग भूतेषु यह पश्यति स पंडित, जो अपने समान दूसरे को समझता है वही पंडित है, ठीक है। जो अपने समान दूसरे को समझता है वही पंडित है। मतलब ये कितनी बड़ी भावना है। मतलब जो हम हैं वही दूसरा भी है, जो हमारे में ज्ञान है वही दूसरे में भी ज्ञान है। मतलब जो हमारे में जान है वो दूसरे में भी जान है, ठीक है। किसी को विशेष परिस्थितियां मिली, वो ज़्यादा एलोबरेट हो गई। तो ब्राह्मण का मतलब जो ब्राह्मण को जानता वही ब्राह्मण है। ये नहीं कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए हम ब्राह्मण कहलाएंगे, ऐसा नहीं था कोई कॉन्सेप्ट। जो ब्रह्म को जानता है, और अब ये ब्रह्म, यहाँ बहुत सारे मीनिंग इसके हैं कि ज्ञान का मतलब है, कुछ लोग थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, हम ब्रह्मास्मि। मतलब मेरे पास जो ज्ञान है वो दूसरे के पास नहीं है।
तो ये जो घमंड की भावना है वो आदमी के पतन की ओर ले जाती है। तो ये जो सुप्रीम गॉड, मतलब यहां पर जो ब्राह्मण जो कहने का मतलब है, यहां पर नॉलेज से मतलब है, और उस सेंस में शंकराचार्य बिल्कुल सही है। लेकिन आज जिस रूप में उसको प्रस्तुत किया जा रहा है उससे मीनिंग बदल जाती है। तो शंकर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत बड़े फिलोसफर्स माने जाते हैं शंकराचार्य ने, और भारत को एक नई दिशा प्रदान की उस जमाने में जब भारत में जो सनातन ट्रेडिशंस के ऊपर बहुत सारे अटैक हो रहे थे, बहुत सारे वैचारिक अटैक हो रहे थे। ऐसा नहीं कि हम 8th 9th सेंचुरी में जो अटैक करते हैं, चाहे जो बाहर से जो इन्वेडर्स आए, उस तरह का अटैक नहीं था। यह वैचारिक अटैक ज्यादा था कि हम काउंटर करते हैं, हम विचारों के माध्यम से आपको हम नीचे दिखा रहे हैं कि आपके विचार गलत हैं और हमारे विचार सुपीरियर हैं। तो इस तरह के अटैक बहुत हो रहे थे। तो शंकरा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स ऑफ इंडिया वाज बोर्न इन केरला में इनका जन्म हुआ था। एंड इन द 8th सेंचुरी ही वाज एन एडवोकेट ऑफ द्वैत एंड अद्वैत। उन्होंने कहा कि ब्रह्म को उन्होंने एक माना, मतलब जीव और ब्रह्म को उन्होंने शरीर से अलग नहीं माना, सब एक ही हैं, और हम जिस तरह के कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमारे लेवल अलग हो जाते हैं। और इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, हाँ, कि जब हम मनसा वाचा कर्मणा में एक रूपता लाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा इस लेवल पर हम आ जाते हैं, अद्वैत। ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल और ये एंड द सुप्रीम गॉड। जब हम अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं, पूर्णतया सरेंडर करते हैं, तो हमारा जो मानसिक स्थिति हो जाती है, हमारी वैचारिक स्थिति जो हो जाती है, वो बिल्कुल गॉड के समान हो जाती है, भगवान के समान हो जाती है। इसलिए आप देखो, जब हम बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, ऐसे महापुरुषों की जब बात करते हैं, तो हम भगवान एक मानते हैं कि भगवान है, सुप्रीम अथॉरिटी है। लेकिन हम कभी कभी ऐसे विचार के लोगों से हम इतने प्रभावित हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके कर्म, उन्होंने अपने आप को ऐसे सुप्रीम गॉड को अपने आप को सरेंडर किया। तो वो वननेस वाली जो कॉन्सेप्ट है, एक रूपता वाली जो कॉन्सेप्ट है, वो उस लेवल तक वो आ जाते हैं। थोड़ा बहुत मैं इस पॉइंट को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब अपने लेवल से आप जितना समझ पा रहे हो उतना अभी के लेवल के लिए सब मोर देन सफिशिएंट है। चलो, तो ही टॉट दैट ब्राह्मण्स द ओनली अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, ब्राह्मण्स मतलब ये ब्राह्मण नहीं मैं बोल रहा हूं जो आज के जमाने में हम यूज करते हैं, मतलब नॉलेज से मतलब है ज्ञान, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। द ओनली अल्टीमेट रियलिटी, वही एकमात्र सत्य है। वॉज फॉर्मलेस, ठीक है, एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स। ही कंसिडर्ड दैट, पढ़ो आगे। He considered the world around us to be an illusion or maya. Yes. And preached renunciation. Yes. ठीक है, पढ़ो। renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation. Yes, यही बात मैं बोल रहा था, ये यहाँ लिखी हुई है। He considered the world around us, हमारे चारों तरफ जो संसार दिखाई दे रहा है, हमारे चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। He considered the world around us be an illusion है, ये वास्तविक संसार नहीं है। उन्होंने क्या बताया? ये सब माया मोह है। ठीक है, एक दिन एक भोजपुरी में कहते हैं लोग, एक दिन जाए बदे बांसे का विमान बनल बा, फिर भी काहे लोग आज बेईमान बनल बा। मतलब कहने का मतलब, इसको हम जरा हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कि आज लोग सब कुछ, मतलब जब आदमी मरता है तो बांस की जो टकटी होती है उस पर जो है उसको ले जाते हैं और शमशान घाट पर उसको अंतिम विदाई देते हैं। कहने का मतलब क्या है? द अल्टीमेट ट्रूथ इज डेथ, द अल्टीमेट ट्रूथ इज डेथ। लेकिन फिर भी है कि हम अपने भाई बंधु सबसे सगे संबंधियों से दूरी बनाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, हाँ, मन में तमाम तरह के गुबार मन में रखते हैं और अपने ही संसार को दुखी बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अराउंड अस जो हमारा संसार दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो एक इल्यूजन है। ठीक है, द अल्टीमेट ट्रुथ तो कुछ दूसरा है। ठीक है, ये शक्ति उनको कैसे मिली? ये कहीं ना कहीं
पूर्व जन्म का जो कह लिया जाए, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में 5 साल की उम्र में बहुत कुछ उन्होंने अचीव कर लिया था। ठीक है, 11 साल में तो उन्होंने, जिस उम्र में आप क्लास 6 7th में हो उसमें तो उन्होंने घर ही छोड़ दिया था। सोच लो जरा, कल्पना करो, जस्ट यू पुट योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ शंकराचार्य जी। सोचो जरा, आपको मार्केट भेजना होता तो मम्मी आपकी नहीं भेजती है। आई एम राइट रॉन्ग? बोलो भाई। Right, sir. Yes, sir. हाँ, You are right, कितना sir. कितना संकोच करती है मम्मी कि हमारे बेटे को ये हो जाएगा, हमारे बेटे को वो हो जाएगा ना। और शंकराचार्य की माता वो भी नहीं भेजना चाहती थी, माँ तो माँ ही होती है, लेकिन शंकराचार्य, सर मेरी माँ मुझे भेजती है। चल तू भी महान बनेगा पक्का। ऐसा नहीं है बेटा, भेजती है, अच्छी बात है ना। और जो मदर नहीं भेजती हैं, जुडिशियस होती है, थोड़ा सा हमको समय के साथ थोड़ा सा केयर भी करना है, लेकिन एक्सपोजर भी देना है, ये जरूरी है, नहीं तो हम हैंडीकैप हो जाएंगे बिल्कुल। इसलिए बच्चों को छूट देनी है, लेकिन उसी तरह की छूट देनी है जैसे पतंग को पतंग उड़ाने वाला छूट देता है। ठीक है, अगर पतंग जब तक जो डोर जो है ना वो पेरेंट्स के हाथ में रहेगी, आप अपने आप को पतंग मान लो, खूब ऊंची उड़ान भरो, लेकिन जो डोर है ना, और उसको कमांड करने वाला कौन होता है? जो पतंग उड़ाता है। Parents. हाँ, तो माता पिता वो जिसको हम, उसको आप क्या कहते हो, उसको जिसमें आप धागे लपेटते हो? हमारे यहाँ तो लटाई कहते थे, अब यहाँ आप लोग क्या कहते हो नहीं जानता हूँ। तो फिरकी कहते हैं, तो फिरकी यहाँ दिल्ली में फिरकी कहते हैं, और कुछ जगह पर चक्री. हाँ, ठीक है चक्री करो, जो भी करो, मतलब जिसमें धागे बांधे जाते हैं, तो वो पेरेंट है, मान लो ना, उड़ाने वाले जो पेरेंट है। ठीक है, और जो धागा है वो डिसिप्लिन है, और पतंग है वो आप लोग हैं। तो पतंग आसमान में उड़ता है तभी तक उड़ता है जो डिसिप्लिन की डोर से माता पिता उसको पकड़े रहते हैं। गेटिंग पॉइंट? और जिस दिन ये डिसिप्लिन कमजोर हुआ, धागा जो कमजोर हुआ, डिसिप्लिन कमजोर हुआ, तो बच्चे का अंत क्या होगा? बच्चा जमीन पर आकर गिर जाएगा। समझ रहे हो? तो शंकराचार्य के ऊपर उनकी मां ने विश्वास किया, क्योंकि शंकराचार्य ने उसको दिखाया। अगर आप दिखाओगे विश्वास तो आपके पेरेंट्स भी आपको छूट देंगे। सीधी सी बात है, अगर आपके पेरेंट्स आपको छूट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कमियां हैं, और उन कमियों को दूर करना आपका काम है। इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर मॉरल ड्यूटी टू develop such an attributes that the parents can rely on you, can create faith on you. So that is the whole responsibility lies on you. ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो हम अगर Yes, हाँ, तो रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड हम एंड एडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज, तो हम इस नॉलेज के पाथ पर अगर चलेंगे टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर, तभी हम ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण्स मतलब नॉलेज एंड अटेन सेल्वेशन मतलब मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो दुनिया क्या है, मरी जा रही है, मरी जा रही है, मरी जा रही है। किसके चक्कर में? 99 के चक्कर में। मतलब क्या है, अगर 1 रुपया और हो जाता तो 100 हो जाता, फिर 100 हो गया तो 199 हो गया, तो फिर बोले कि 200, 1 रुपया और मिल जाता तो 200 हो जाता। इसी चक्कर में दुनिया मरी जा रही है, पैसे के पीछे भागे जा रही। पैसा जरूरी है, बट पैसा इज नॉट द गोल, मनी इज नॉट द अल्टीमेट गोल। आई एम राइट रॉन्ग? Right. अरे बहुत जल्दी समझ गए, तब तुम लोग एकदम ब्रह्मा के लेवल पर आ गए तुम लोग। तो अब तो मुक्ति मिलेगी ही तुम लोगों को। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना? ठीक है, ये हमारे संस्कृति के आधार है। तो आप कर्म करना चाहिए, अर्थ का उपार्जन करना चाहिए, मतलब पैसा अर्न करना चाहिए। फिर धर्म के साथ सब कुछ जब करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्म को छोड़ोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और धर्म क्या है? धारिति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धारण करने योग्य क्या है? बचपन में किस तरह का काम करना है, किशोरावस्था में किस तरह काम करना है, यूथ की अवस्था में किस तरह काम करना है, बुढ़ापे में किस तरह काम करना है। तभी अगर हर स्टेज में आपने सही काम किया तो जीवन आपका सफल है। छोटी उम्र में जो ब्रह्मचर्य है वो पढ़ने की उम्र है, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की, टीवी और कार्टून और इस तरह के चक्कर में फंस के अपने आप को बर्बाद कर दिए, तो फिर आगे किशोरावस्था और युवावस्था और बुढ़ापा आपका दयनीय हो जाएगा। रोगे, बेटे बेटियों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, और वो आपको बुढ़ापे में बाबा का ढाबा हो जाएगा लाइफ। समझ रहे हो मेरी बात? तो मुक्ति आपको नहीं मिलेगी, आप हमेशा परेशान रहोगे। चलो, इट्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड आपका
समय होता है पूरा। हम अगली बात आपसे करेंगे फिर दोबारा। तब तक के लिए हम आपको बाय बाय कहते हैं, सायोनारा कहते हैं। ऐश्वर्या के शब्दों में सायोनारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। बाय।